Very good morning to one and all. Hope you all are safe and fine at your home. In social studies, today we will see chapter number 7 and the name of the chapter is Sending Messages. Before we start the chapter, here we will understand the term communication. What is the meaning of communication? Means to share our ideas, to share our thoughts, to share our feelings or exchange some information, that is known as communication. Okay, when we share our thoughts, ideas and feelings or exchange information with other people, we say we are communicating. When we are sharing what's in our mind, that is known as communication. Okay, speech is the fastest method of communication between people. What we communicate between people, what we communicate in that communication, speech means what we are speaking, that is the fastest method of communication. Communication might be verbal and non-verbal. For example, some communication we are doing verbally, means we are speaking and communicating, and some communications are non-verbal, means we are communicating just by giving gestures or pose or by doing actions. Okay, so that is also the communication or the way of sharing our feelings or ideas. Okay, so communication might be verbal and non-verbal. Okay, however, when we have to share our feelings or exchange information with people we are not who are not physically present with us, we send messages. But when another person to whom you want to communicate, that person is not physically present in front of you, and then if you want to share your feelings or you want to exchange your information or you want to talk, then what we are doing, we are sending messages. Okay, there are several ways of sending messages. We can send a letter or telegram to a friend. Telegram was before used by the people. We are writing letters or telegram were sent to a friend or another one to whom we want to communicate. Talk to her over the phone. फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, पर ये सब कब हो रहा है? अभी. और लेटर्स थोड़े पहले यूज़ होते थे, लेटर्स एंड टेलीग्राम, बट उससे भी पहले जब लोगों को लेटर्स, पोस्टल सिस्टम ये सारा अवेलेबल नहीं था, एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज टू कम्युनिकेट. बट बाय हाउ? लॉन्ग अगो पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू कैरियर पिजन्स or had to send someone with the message. बहुत टाइम पहले communication तो हुआ ही करता था, but how they used to communicate? There were trained pigeons. pigeon रखे जाते थे और वो pigeon में अपना जो letter होता है या तो पर्ची होती है लगा देते थे, and that pigeon was directly sent to the another person. उसको ट्रेन किया गया होता है, एंड दैट पर्सन गेट दैट लेटर और द मैसेज. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर पिजन यूज़ नहीं होते थे तो कोई इंसान को, कोई पीपल को भेजा जाता था कोई मैसेज लेके. ओके, यू माइट हैव सीन इन द पिक्चर्स ऑल्सो व्हेन रामायण एंड महाभारत कैसे मैसेज दूसरे किंग को या उसको भेजना होता है, तो उसके जो सिपाही होते हैं उसको मैसेज लेके भेजते हैं, तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है, देन दे यूज टू गो बाय वॉकिंग और दे यूज हॉर्स और एलिफेंट टू ट्रैवल विद द मैसेज. वो एक कोई इंसान को भी मैसेज लेके भेजा जाता था. हाउएवर नाउ वी हैव more reliable and faster methods of sending messages. अभी हमारे पास इतने easiest way, reliable और faster methods आ गए हैं messages send करने के लिए. Let us read about a few of them. आगे हम पढ़ेंगे कि how we
what are the different methods of sending messages. Okay, first one is postal system. The postal system was established for sending messages. मैसेजेस सेंड करने के लिए पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश की गई थी. और इन इंडिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस. वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस. अलग अलग पोस्ट ऑफिस में से भी लेटर्स भेजे जाते हैं. अलॉन्ग विद द लेटर्स हम मनी ऑर्डर्स और पार्सल भी सेंड कर सकते हैं. बट ये किन के लिए? जो रीड कर पाता है रिटर्न मैसेजेस. ओके, बट पीपल हु डू नॉट हियर और स्पीक टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए बोल नहीं सकते या तो सुन नहीं सकते, देन वो लोग क्या करते हैं? दे यूज टू कम्युनिकेट बाय साइन लैंग्वेजेस. साइन लैंग्वेजेस भी अलग आता है. जो आप डेफ एंड डम पीपल के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ विजिट करो तो आपको देखने को मिलते हैं कि हाउ दे यूज टू कम्युनिकेट. वो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, देन ऑल्सो दे यूज टू कम्युनिकेट बाय साइन लैंग्वेजेस. वो अपने जेस्चर्स और जो साइन लैंग्वेजेस उनको सिखाई जाती है उनकी हेल्प से वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए भी उनके स्कूल्स अलग होते हैं. उनको उन तरीके का पढ़ना लिखना सिखाया जाता है. वो उनकी जो सेंसेस होती है बहुत ज़्यादा काम करती है. हम जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उससे ज़्यादा उनके सेंसेस काम करते हैं. जो लोग ऐसे ब्लाइंड या डेफ एंड डम होते हैं तो ब्लाइंड लोगों को उसकी बुक्स अलग, उनकी बुक्स अलग आती है. उनको आप ऐसे टच करो तो उनके जो सारे लेटर्स होते हैं वो उनको फील होते हैं. इन दैट वे दे यूज टू रीड व्हाट इज रिटन एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे यूज टू कम्युनिकेट. ओके, see here in the pictures you can see different means of personal and mass communication. mass communication क्या है वहाँ हम आगे आएंगे. ओके, now post offices also offer courier services known as speed post. पोस्ट ऑफिस में से कुरियर सर्विस भी अवेलेबल होती है जिसको बोला जाता है स्पीड पोस्ट. उसका नाम ही देखो ऐसा स्पीड पोस्ट, यानी कि वो आपने जो कुछ भेजा है वो 1 या 2 दिन में जहाँ जो दूसरे सिटी में भेजना है वहाँ पहुँच जाता है. लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट take only 1 or 2 days to reach any city in India. Courier services are also offered by a number of other private companies in India. Courier services पोस्टल सिस्टम का भी एक सर्विस कुरियर अवेलेबल है और प्राइवेट कंपनीज भी होती है कुरियर सर्विसेज की जिसमें आप कुरियर कर पाते हो. लेटर्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, पार्सल है. ओके, तो नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर कुरियर. सेकेंड way of sending messages, email. What is the full form of email? That is electronic mail. A very convenient and fast method of sending messages today is email or electronic mail. Emails are sent through computers connected to the internet. But ये कब हो पाता है कि दोनों जगह पर सेंडर के पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और रिसीवर के पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तो कंप्यूटर में से. बट नाउअडेज वी कैन ऑल्सो सेंड ईमेल्स थ्रू आवर मोबाइल फोन्स और सेल्यूलर फोन्स. ओके, तो फ़ोन में से भी ईमेल भेजे जा सकते हैं. बट कंडीशन 1 इज़ कि दोनों के पास कंप्यूटर में या तो मोबाइल में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए तो ही सेंडर है वो ईमेल भेज सकता है और रिसीवर के पास अगर इंटरनेट होगा तो ही रिसीवर को ईमेल मिला जाता है. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज द टेलीफोन्स. टेलीफोन्स इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ सेंडिंग स्पोकन मैसेजेस. बोला हुआ स्पोकन मैसेजेस में टेलीफोन्स आर द वेरी कन्वीनियंट. बहुत आसानी से वी कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग and this is the fastest method of sending spoken messages. Almost every city and town in India is now connected by telephone से. इंडिया के
कहीं सारे सिटीज़ और टाउन्स टेलीफोन से कनेक्टेड है। वी कैन इंस्टेंटली टॉक टू एनीवन एनीवेयर इन इंडिया और इन द वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन। टेलीफोन पे हम लोग किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, चाहे वो एक सिटी में हो या फिर डिफरेंट सिटीज़ या तो डिफरेंट कंट्रीज या तो फिर वर्ल्ड के कहीं कोने पे भी हो, हम लोग टेलीफोन से बात कर सकते हैं। ठीक है। टू टॉक टू समवन इन अनदर सिटी इन इंडिया वी यूज़ द STD कोड्स। STD कोड्स, STD का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस फुल नेम्स। ओके। STD कोड आगे लगाया जाता है। अगर हम टेलीफोन, जिसके पास अभी भी घर पे होगा उनको मालूम होगा कि उनका जो टेलीफोन नंबर होता है उसके आगे STD कोड लगाया जाता है। ओके। अगर दूसरे सिटी में बात करनी हो तो। टू टॉक टू समवन इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में बात करनी है तो ISD कोड लगाया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ISD कोड फैसिलिटी यूज होती है टेलीफोन में। बट ये चीज़ टेलीफोन दोनों जगह पर सेंडर और रिसीवर के पास होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग कि वो हमारे साथ मोबाइल नहीं होता, वो कैरी नहीं होता, वो घर पे ही रहता है या तो ऑफिस में ही उसको लगाना पड़ता है। ठीक है। बट nowadays another method of sending messages is through social networking sites such as Facebook and WhatsApp. You all are very familiar with the social networking sites and you all might be using you not but your parents, सबके पेरेंट्स के पास WhatsApp फैसिलिटी, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में अवेलेबल होता है। उसमें हम लोग मैसेजेस सेंड कर पाते हैं, ऑडियो क्लिप इज सेंड, वीडियो, रिटन मैसेजेस, ऑल द मैसेजेस वी कैन सेंड आइदर टू वन पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को भी भेज सकते हैं और एक साथ कहीं सारे पर्सन लोगों को भी भेज सकते हैं। ठीक है। Now another method of sending messages is through cell phones. Mobile or cellular phones are phones that can be carried along with you. टेलीफोन्स होते हैं वो हमारे साथ हम लोग कैरी नहीं कर पाते, but the cell phones are such a thing that we can carry with us anywhere. Okay, so we can talk anytime and to the anywhere where we are present. दे आर वेरी कन्वीनियंट, वो बहुत आसान रहता है टेलीफोन, सेल फोन में बात करना, मोबाइल और सेल्यूलर फोन। वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट मैसेजेस थ्रू आवर मोबाइल फोन्स यूजिंग द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS भी, यानी कि छोटे छोटे रिटर्न मैसेजेस भी हम सेल फोन से या तो मोबाइल फोन से भेज सकते हैं, दैट इज कॉल्ड through SMS, short messaging service. Okay. Did you know with cell phones becoming cheap and new methods of sending urgent messages such as email and SMS, fewer and fewer people are sending handwritten letters now. अभी हमको मालूम है we all are using social networking medias एंड और आप देखते हो कि उसका जो रेट है, जो सेल फोन्स होते हैं बहुत चीप हो गए हैं। पहले जो सेल फोन्स इन्वेंट हुए थे तब बहुत महंगे होते हैं, शायद ही कुछ लोगों के पास सेल फोन्स अवेलेबल होते थे। बट नाउअडेज इवन द वेजिटेबल वेंडर्स आर हैविंग द सेल फोन्स और द मोबाइल फोन्स, दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। ओके, तो अभी सबके पास सेल फोन आ गए हैं तो और अलग अलग मेथड आ गई है मैसेजेस सेंड करने की। तो हैंड रिटन लेटर्स तो अभी पूरे ही गए, कोई हैंड रिटन लेटर्स भेजता नहीं है। ओके, सी यू कैन सी इन द पिक्चर अ पोस्टमैन डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पोस्टमैन। सेकेंड इज अ यंग वुमन राइट्स अ लेटर फॉर अ लेडी हु डजंट नो हाउ टू राइट। सी अ यंग वुमन इज सिटिंग एंड द ओल्ड लेडी इज सिटिंग। The old lady might not be knowing how to write, तो जो young lady है she is helping her. Letters ready to be delivered by speed post. Speed post से जो letters deliver करने हैं उसका ready किया गया है। Speed post का मीनिंग हमने समझा कि वो
1 या 2 दिन में ही जो दूसरे सिटीज़ में आपको भेजना है वो मैसेज लेटर्स मिल जाता है. ओके. Now another one is smartphones. These days smartphones are very popular. Apart from allowing you to make calls, तो जैसे टेलीफोन में हम कॉल कर सकते हैं, स्मार्टफोन में कॉल तो कर सकते हैं, उसके अलावा स्मार्टफोन्स कैन बी यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, ईमेल भेजे जाते हैं, ईमेल रिसीव होते हैं, वी कैन ऑल्सो टेक पिक्चर्स, we can also view them, and we can also send that pictures, we can download the music, we can listen the music. These all things are possible on smartphones. Okay. But with respect to the present situation, we are more and more connected with the smartphones nowadays. Okay. Before fax machine was there, another way of sending messages was fax. To instantly send written messages or pictures, we can use the fax facility, जो अभी बंद हो गई है. But fax is a document sent over the telephone. टेलीफोन से fax मशीन कनेक्ट किया जाता है टेलीफोन लाइन से, और उसमें रिटन मैसेजेस इंस्टेंटली या तो पिक्चर्स होते हैं वो फैक्स के थ्रू भेजे जाते थे. ओके. Now these were the methods of sending messages to one person. Okay, but sometimes what is there कि कोई एक मैसेज है वो कहीं सारे लोगों को एक साथ भेजने का नीड होता है. So that is called mass media. यानी कि mass means एक साथ कहीं सारे बल्कि क्वांटिटीज में, that is called mass media. Okay. Till now we have talked about personal communication. ये जो सारे तरीके थे मैसेजेस सेंड करने के थे, that were used for personal communication, means a person to person or one person sending messages to another. But often we also need to send messages to a large number of people at the same time. एक ही टाइम पे कई सारे लोगों को मैसेजेस भेजने की नीड होती है. वो कैसे पूरी होती है? तो कि दिस कैन बी डन थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोस और टेलीविज़न. दीज आर कॉल्ड मास मीडिया. उनको क्या बोलते हैं? मास मीडिया. और ये जो है सारे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, दे आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके. दैट इज कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एक ही टाइम पे एक ही साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो मैसेज भेजा जाता. तो न्यूज़पेपर कैसे मैसेजेस सेंड करने में यूजफुल होते हैं? तो कि न्यूज़पेपर गिव्स अस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूज़ भी होते हैं, कुछ हैपनिंग्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, दैट वी आर गेटिंग थ्रू न्यूज़पेपर्स. वो दुनिया के कोई भी कोने में के भी जो न्यूज़ होते हैं दैट वी आर गेटिंग in newspapers. A large number of people are published in India. Large number of newspapers are published in India. में कहीं सारे न्यूज़पेपर जो पब्लिश किए जाते हैं in several Indian languages. कहीं सारे इंडियन लैंग्वेजेस में कहीं सारे न्यूज़पेपर्स है वो पब्लिश किए जाते हैं. तो कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से क्या होता है? वो एक ही जो थॉट है, जो राइटर का थॉट है, एडिटर का थॉट है, उसके जो आइडियाज़ है, उसके जो इंफॉर्मेशन है, कुछ न्यूज़ है, कुछ हैपनिंग हुई है दुनिया के कोई भी कोने में, वो न्यूज़पेपर में छपने से, पब्लिश करने से एक साथ कई लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है. ठीक है. by reading newspaper. Nowadays newspaper में we can also give advertisement. तो आपको कुछ बोलना है तो आप एक एक करके बोलने की बजाय आप we can also publish in the newspaper में भी कुछ एडवर्टाइज है, कुछ बर्थडे विशेस है, वो सारी फैसिलिटी न्यूज़पेपर्स में भी उसके अलग अलग कॉलम में अवेलेबल होती है. नाउ नेक्स्ट मास मीडिया कम्युनिकेशन में एक अनदर मीन्स इज the radio gives us news and educational and entertainment programs. ये सारी चीज़ें हमें रेडियो में मिलते हैं. It is very useful for people who cannot read and write. जो लिख नहीं पाते, लिखना नहीं आता, रीड करना नहीं आता, उनके लिए रेडियो इज द बेस्ट
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो सुन तो पाते, सुन के वो समझ पाते हैं, बट उनको लिखना रीड करना नहीं आता। तो रेडियो गिव्स द इंफॉर्मेशन। रेडियो सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में रेडियो के सिग्नल्स रिसीव होते हैं। द एफएम रेडियो स्टेशंस, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लाइक कैसे है, रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, दिस आर द स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस जो इंडिया में बहुत फेमस है। यू ऑल माइट बी लिसनिंग टू देम ऑल्सो, दैट इज वेरी पॉपुलर इन ऑलमोस्ट एवरी सिटीज। News, educational and entertainment programs telecast on television are watched by millions of people. हम लोग अभी टीवी की बात कर रहे हैं, तो टीवी में भी जो सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं वो न्यूज़ के होते हैं, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स जो टेलीविज़न में टेलीकास्ट किए जाते हैं वो एक ही साथ में मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग द टेलीविज़न telecast. Okay, important sports and cultural events can be shown live on television. Here live, live, that is not live, that is live. You can see when मैच क्रिकेट की मैच होती है या कोई भी जो स्पोर्ट्स इवेंट होती है उसके ऊपर वो चैनल के ऊपर लाइव लिखा हुआ होता है। दैट मीन्स वो लाइव वहाँ जो चल रहा है वैसा का वैसा तुरंत आप आपके टेलीविज़न में देख सकते हो। ये कब पॉसिबल होता है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट की वजह से वी कैन व्यू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द इवेंट। जो कुछ भी इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, स्पोर्ट्स की गेम्स है, वो सारे लाइव हम लोग हमारे टीवी में वहाँ जब भी प्ले होता है उसी टाइम पे वी कैन सी बाय सिटिंग एट आवर होम। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। Television signals from one part of the world can be sent to another part of the world through satellite. सैटेलाइट के ज़रिए जो टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं वो दुनिया के कोई भी कोने में से दुनिया के कोई भी कोने तक वो सिग्नल्स पहुँचे जाते हैं। ओके, सो हियर सम पिक्चर्स आर गिवन। फ्रेंड्स चैटिंग ऑन द स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में चैटिंग के जो पिक्चर दिया। नेक्स्ट इज द फैक्स मशीन जो पहले यूज़ किए जाते थे। अनदर वन इज द एफएम रेडियो स्टेशन है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में यूनिवर्सिटी का एफएम रेडियो स्टेशन का पिक्चर दिया गया है। टेलीविज़न सिग्नल्स कैन ऑल्सो बी रिसीव्ड ऑल ओवर इंडिया। हमारे इंडिया में टेलीविज़न सिग्नल्स भी पूरे देश में रिसीव किए जाते हैं। सिंस टेलीविज़न सेट्स आर एक्सपेंसिव, अवर गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड सेट्स एट कम्युनिटी सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन इंडिया। ये थोड़ी पहले की बात है कि टेलीविज़न थोड़े ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, शायद ही किसी के घर पे होते, सबके घर पे टेलीविज़न अवेलेबल नहीं थे बिकॉज दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था दैट टाइम, जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं विलेजेस में, टाउन में जो कम्युनिटी सेंटर्स यानी कि जहाँ पीपल गैदर हो सकते हैं, वैसे कम्युनिटी सेंटर्स में टेलीविज़न सेट लगाए दिए थे गवर्नमेंट ने ताकि लोग वहाँ टीवी देख सकें। बट वो थोड़ी बहुत पहले की बात है। बट नाउअडेज सबके घर पे टेलीविज़न आर अवेलेबल एंड उसमें भी ज़्यादा नाउअडेज स्मार्ट टेलीविज़न्स आर अवेलेबल। जैसा काम आप मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में होता है उसका स्क्रीन मिररिंग स्मार्ट टीवी में भी होता है। सो ये थोड़ी पहले की बात हो गई। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, 1-to-1 पर्सनल मैसेजेस सेंड करने के भी डिफरेंट मेथड्स हमने देखे। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 सेंडिंग मैसेजेस। नाउ वी विल सी द वीडियो। थैंक यू। Welcome kids! Let's get to know communication. Its meaning, importance, types, history, and the various means of communication.
Here, students are communicating with each other. What is communication? Sharing of ideas, thoughts, feelings, or exchange of information between individuals. The importance of communication has been felt since time immemorial. Communication is a very integral part of our lives. It enables us to express ourselves. The emergence of communication. Symbols. Symbols were developed about 30,000 years ago. There were various kinds of symbols developed. Cave paintings. The oldest form of symbols created for communication were cave paintings, which is a type of rock art. Pictograms were symbols representing a concept, activity, place, or event. Ideograms were the evolved forms of pictograms. These were graphical symbols used to represent an idea. The oldest forms of writing dates back to around 3000 BC. Writing brought a revolution in the human civilization. The first known writing devices originated in the Egyptian and Sumerian civilization. In olden days, people also used pigeons to send messages over long distances. Is communicating. We need to understand that when two people talk, whether face to face or through a telephone or email, they are sending messages to each other. However, newspapers, televisions, and radios send messages to the masses. Such type of communication is called mass communication. There are many ways through which individuals communicate. Let us take a look at them one by one. Postal system. The advent of the postal system made it very convenient to send and receive messages. Services provided by post offices include inland letters, postcards, telegrams, aerograms, money orders, and parcels. Letters can be sent through normal post, speed posts, or courier services. Telephones are the fastest and the most convenient means of communication. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Almost every city and town in India is connected by telephones. STD, subscriber trunk dialing, is used for talking to people within India. And ISD, international subscriber dialing, is used for talking to people outside of India. We can use STD and ISD to connect to anybody in the world. In the past decade or so, mobile phones have become very popular. They are portable and handy and can be carried anywhere. Mobile phones are also used for sending text messages or SMSs, short messaging service. Fax or
Facsimile. A fax connected to a phone line is used to send printed matter and pictures. Internet. The arrival of Internet has transformed the way we communicate. It enables us to find and share huge amounts of information instantly. Email. It enables us to send and receive messages instantly and connects us to people in any part of the world. Hey, it's fun time! Let's do some brain scratching activities. Let's see which famous websites do these logos belong to. A. Facebook. B. Google. C. Twitter. Mass communication. Mass communication is the means of communicating with the general public or masses. There are various ways in which we can connect to the masses. Electronic media and print media. Let us know the different forms of electronic media used for mass communication. Radio. Who doesn't listen to the FM or the AM while stuck in a traffic jam? And how about the cricket commentary during a T20? Thanks to Guglielmo Marconi, the inventor of radio, we are always connected to the world of news, cricket, music, and so much more because of his ingenious invention. It is the cheapest means of communication. Television. The television is probably our most favorite means of communication. It was invented by John Logie Baird. It shows visuals as well as sounds. We can watch news, entertainment programs, or even movies on the television. Do you know? Doordarshan is our national television channel. Akashvani or All India Radio is our national radio network. Bollywood. Newspapers are intrinsically tied up in the modern society. Newspaper is one form of print media. Other forms are books, magazines, and so on. Print media is a powerful means of communication. The printing press was invented in 1443 by Johann Gutenberg. Satellite communication. Communication satellites are sent into outer space by rockets and they revolve around the Earth. Several signals are sent up which are transmitted back by the satellites. These enable live telecast of events on television. Thank you. Presented by Extra Marks.